السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امتیاز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز اردو کلاسز کو۔ سامعین، میں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ حضرات جو ہے بڑی اچھی سے تیاری ہو جائے گی، کیونکہ ابھی میں فی الحال میں دیکھو وقت بہت کم ہے۔ اس وقت کے تقاضے کے حساب سے میں جو ہوں بڑے ہی اختصار اور شارٹ میں یہ سارے قواعد اور گرامر کو پورا کر رہا ہوں، اور مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ شاید کہ بچے جو ہے گرامر اور قواعد کو دیکھنا تھوڑا کم پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا گرامر سے کم 10 سے 15 نمبر گرامر سے آتے ہیں، اور اگر آپ کی گرامر اگر مضبوط رہے گی، قواعد اگر مضبوط رہیں گے، انشاءاللہ آگے بھی کام آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے 2 چیپٹر 3 چیپٹر کر کے انشاءاللہ میں کہکشاں کا بھی پڑھاؤں گا، اور 15 سے 20 دن میں انشاءاللہ اس کی مکمل تیاری کرا دوں گا، یہ میرا ارادہ ہے۔ اور باقی آپ حضرات اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اسی دل و جان کے ساتھ میں لگا رہوں گا، اور آپ حضرات کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا، اور آپ حضرات کے مکمل تیاری کرانے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا میں۔ چلیے، کل میں آپ حضرات کے سامنے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تقسیم بھی بتائی تھی۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی جو تعریف ہے وہ تعریف میں نے بتائی تھی، اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں۔ تو بڑی ہی جلدی بازی کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا پچھلا جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو تھوڑا اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کو تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک دو بات صرف، جیسے کہ اسم معرفہ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اسم معرفہ کس کو کہا گیا ہے؟ وہ اسم معرفہ کہ جس سے کیا ہوتا ہے، کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے نا، عام چیز مراد نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص چیز مراد ہوتی ہے، اسی کو اسم معرفہ کہا گیا تھا۔ جیسے کہ خاص چیز کیا تھا ہمارا؟ پٹنہ خاص جگہ ہے نا، دانش کوئی خاص نام ہے، اس کو اسم معرفہ کہا گیا تھا۔ اب اسی کی قسمیں بتا رہے تھے، بہت پوچھا جاتا ہے، بہت زیادہ اسم معرفہ کی قسمیں پوچھی جاتی ہے۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف، معہود، منادا۔ لیکن آپ کو اگر یہ یاد نہ رہے تو صرف اس کو یاد رکھنا ہے، اسم معرفہ کتنی قسمیں ہیں؟ 7۔ اس کو آپ یاد رکھیں گے، اسم معرفہ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا اگر تعریف میں نے لکھ دی ہے، میں پڑھ کے بتا دوں گا، اور پریبھاشا اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کیا نام، انشاءاللہ میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن کم سے کم وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس کو مکمل طور پر سمجھانے کی یہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس سے کوشچن بنتا ہے، سوال بنتا ہے، اس سے ہے نا، اس سے بہت زیادہ بنتا ہے نا، یہ سب سے بہت زیادہ سوال بنتا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہندی میں سرونام کہا جاتا ہے۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ سرونام۔ ضمیر کو کس کو بولتے ہیں؟ ضمیر کو کیا بولتے ہیں؟ سرونام۔ کیا بولتے ہیں؟ سرونام بولا جاتا ہے اس میں ضمیر کو۔ اور ضمیر کیا ہوتا ہے؟ سرونام سمجھ گئے ہوں گے، جو کسی اسم یعنی ناؤن کے بدلے میں ہے نا، ناؤن کے بدلے میں جو پروناؤن یوز کرتے ہیں اسی کو ضمیر کہا جاتا ہے، یعنی جو سنگیا کی جگہ پر سرونام استعمال کرتے ہیں اسی کو ضمیر کہا گیا، یعنی سرونام اور ضمیر ایک ہی چیز ہے۔ ضمیر اردو اور یہ سرونام ہندی۔ تو ضمیر، اچھا اس سے پہلے میں یہ پڑھا رہا تھا، اسم علم کسی فرد، جگہ یا کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ یہ اسم معرفہ اور اسم علم، اس میں کوئی فرق زیادہ ہے نہیں، لیکن اس کے اقسام میں سے نکال دیا گیا ہے، یہ اس کی 7 قسمیں ہیں۔ بعض جگہ اسم علم کو ہٹا بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر چونکہ اسم علم ہے تو اسم علم اور اسم معرفہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو آپ جو اسم معرفہ کی تعریف کریں گے وہی تعریف اسم علم کی بھی کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس میں کوئی زیادہ تحقیق کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے فی الحال میں، کیونکہ بس سمجھنے کے لیے اسم معرفہ کی جو تعریف ہوگی، جو پریبھاشا ہوگی، وہی اسم علم کی بھی پریبھاشا ہوگی۔ جو کسی فرد مراد آتا ہے کسی شخص، کسی ویکتی کو، ہے نا۔ فرد مطلب ہوتا ہے ویکتی، شخص، ہے نا۔ کسی فرد یا کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے میرا پتہ بتا دیا، جیسے پٹنہ ہے، جگہ کا نام ہے، دہلی جگہ کا نام ہے، حامد کسی شخص کا، کسی فرد کا نام ہے، عمران کسی فرد کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے۔ اسی کو کیا کہا؟ اسی کو معرفہ کہا تھا، اسی کو اسم علم بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ اس میں علم سمجھ گئے ہوں گے، یہ تعریف سے ہی بالکل پوری واضح ہے۔ اس میں ضمیر کو سمجھنا ہے جو کسی اسم کے بدلے میں آئے، سرونام سنگیا کے بدلے میں آتا ہی ہے، جیسے وہ سب، میں، ہم سب، تو، تیرا، ہے نا، یہ سب آتا ہے کہ جیسے میں نے کہا، کیسے اس میں کیا کریں گے، یہ لمبا ہو جائے گا تھوڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک نام لفظ استعمال کیا، حامد استعمال کیا، اس کے بعد میں کیا کہا کہ حامد گھر گیا اور اس نے جا کر کے اپنے والد سے کہا، اور اس نے جا کر کے حامد گھر گیا اور اس نے جا کر کے اپنے والد سے کہا۔ کیا کہا وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، حامد یہ اسم ہے، حامد کیا ہے، اسم ہے، حامد گھر گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہاں لگا سکتے تھے اس نے کی جگہ پر حامد نے، کس نے، اور حامد نے جا کر کہ اپنے والد سے کہا، حامد نے جا کر اپنے والد سے کہا، لیکن ہم یہاں پر ضمیر لگائیں گے، یہ حامد اسی ضمیر سے وہی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس نے سے کیا مراد ہے، اس نے سے کیا مراد ہے، حامد، اس نے سے کون مراد ہے، حامد مراد ہے نا، اس نے سے کون مراد ہے، حامد مراد ہے، تو یہاں پر حامد نہ بول کر کے ہم کیا لگا رہے ہیں، اس نے لگا دیا، کیا لگا دیا، اس نے لگا دیا، یہی تو ضمیر ہے، لفظ اس کیا ہو گیا، یہ ضمیر ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ ضمیر، اسی کو کیا بولا، سرونام اسی کو بولا گیا، کیا نام بولا اس کو، سرونام اس کو بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے لفظ اس یہ کیا ہے، ضمیر ہے، یعنی حامد کی جگہ یہاں پر حامد یوز کر سکتے تھے، لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا قواعد کے حساب سے، کیونکہ اس میں کیا ہوگا، تھوڑا بھونڈا پن آ جائے گا، خوبصورتی نہیں رہے گی، اس لیے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس میں ضمیر کا بھی استعمال کرتے ہیں، جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہر جگہ حامد نہیں لگائیں گے، بلکہ ایک جگہ صرف حامد لگا دیں گے، اور ہر جگہ جتنا بھی آپ واقعہ بیان کرتے چلے جائیں گے، جتنی کہانی بیان کرتے چلے جائیں گے، ہر جگہ اب اس نے، وہ، یہ ہے نا، اس نے کہتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے خیال سے ضمیر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس سے وہ ہے نا، وہ سب، یہ سب کیا ہے نا، وہ سب آ گئے، وہ سب کھیلنے کے لیے چلے گئے، یہ کیا ہے، ضمیر ہے، یہ سب کیا ہے، ضمیر ہے۔ تو خیر یہ بات ہو گئی۔ اب ایک ہوتی ہے اس میں اشارہ کا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا ہوتا ہے، اشارہ کا مطلب کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، سبھی سمجھتے ہیں اشارہ کس کو کرتے ہیں، کسی کو اشارہ کرنا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، ہے نا، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں اس بورڈ کی طرف، ہے نا، اس بورڈ کو دیکھیے، تو اس بورڈ کو دیکھیے، میں نے اشارہ کیا اس بورڈ کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو ایک اشارہ ہوتا ہے وہ اسم معرفہ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کیا، یعنی کسی بھی چیز کی طرف اگر اشارہ کر رہے ہیں تو وہی اس میں اشارہ ہے، جس لفظ سے، جس اسم سے آپ اشارہ کر رہے ہیں وہی اس میں اشارہ ہے، جیسے یہ بورڈ، میں نے یہ بورڈ لکھا، بورڈ ہے نا، یہ بورڈ، میں نے کس سے اشارہ کیا، لفظ یہ سے، کس سے، یہ سے، وہ لڑکا، تو وہ لڑکا، تو میں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، کس سے، لفظ وہ سے، اس سے کیا پتا چلا کہ یہ اور وہ، یہ سب کیا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس لڑکے نے کہا، اس لفظ اس بھی کیا ہو جائے گا، اس میں اشارہ، کیونکہ جس اسم سے، جس حرف سے، جس لفظ سے آپ اشارہ کریں گے وہی اسم، وہی اشارہ کا لفظ ہے، وہی کیا ہے، اشارہ کا لفظ ہے، جیسے یہ، وہ، یہ سب، وہ سب، ہے نا، اس نے کہا، کس نے کہا، اس نے کہا، تو اس نے اشارہ ہو رہا ہے، اس نے کہا، ہے نا، یا اس نے کہا، ہے نا، اس نے مارا، اس نے میرا قلم توڑ دیا، اس قلم کو پکڑو، ہے نا، تو یہ اور وہ، اس یہ سب کیا، اس سے اشارہ کرتے ہیں، جس سے اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں،
ہے نا, जिस लफ्ज़ से वही इसमें इशारा है. ठीक है, इसमें दो बातें समझाता हूँ मैं क्या क्या होता है. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा तेज़ बता रहा हूँ मैं अब, और इसको वीडियो को दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा. एक होता है इसमें इशारा बता दिया, इसमें तीन चीज़ें, इशारा, मुशारुन इलैह, क्या होता है, मुशारुन इलैह, और एक होता है मुशारुन, यानी मुशार बोलते हैं उसको, मुशारुन. अब ये क्या होता है इसको देखिए, वो तो जिस मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए, वही क्या है, मुशारुन इलैह. मुशार इशारा करने वाला, इशारा करने वाला, है ना. और इसमें इशारा समझ गया, जो किसी चीज़ की तरफ, जिस इसम से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जिस इसम से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए. हमको समझाना है मुशारुन इलैह और मुशारुन को समझाना, मुशारुन इलैह और मुशार को समझाना है. मुशारुन इलैह क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इस ब्लैक बोर्ड को, इस वाइट बोर्ड को देखो सही से, है ना, इस बोर्ड को सही से देखो. मैंने इशारा किया इस बोर्ड की तरफ, इस बोर्ड की तरफ मैंने इशारा किया, तो इशारा मेरा किसकी तरफ है, बोर्ड की तरफ है. तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो मैंने किसकी तरफ इशारा किया, बोर्ड की तरफ. तो बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया क्या, मुशारुन इलैह. क्या हो गया, बोर्ड मुशारुन इलैह. और इशारा कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं हो गया मुशार, यानी इशारा करने वाला. और किससे कर रहा हूँ, किस लफ्ज़ से, इस बोर्ड को देखो, इस लफ्ज़, इससे इशारा कर रहा हूँ. ये समझ में आ गया. मुशारुन इलैह किससे कहा गया, मुशारुन इलैह वो होता है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसी को मुशारुन इलैह कहा जाता है. जैसे मैंने कहा वो घड़ी उठा लाओ, या उस घड़ी को देखो, उस घड़ी को देखो, है ना. तो उस घड़ी की तरफ इशारा किया, तो घड़ी, इशारा किसकी तरफ किया, घड़ी की तरफ, तो घड़ी ही हो जाएगा मुशारुन इलैह, यानी उसी की तरफ इशारा है, इसलिए घड़ी मुशारुन इलैह. और इशारा कौन कर रहा है, मैं अगर इशारा कर रहा हूँ तो मैं मुशारुन हो जाएगा, यानी इशारा करने वाला मैं हूँ तो मुशारुन हो जाऊँगा. और इसी तरीके से इसमें इशारा क्या होगा, वो घड़ी या उस घड़ी को देखो, तो उस लफ्ज़, उस क्या है, ये इसमें इशारा है. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे. चलो अब चलते हैं इसमें मौसूल की तरफ, इसमें मौसूल की तरफ चलते हैं. इसमें मौसूल क्या होता है, देखिए ये थोड़ा सा वो इसमें है जो एक वस्फ़ी जुमला के बगैर अपने माना ना बताए. यानी इसमें क्या होता है, इसमें मौसूल में कि एक ऐसा जुमला, ये जुमला का जुज़ होता है, जुमला का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जुमला का सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है. जब तक कि उस सेंटेंस, उस हिस्से को नहीं लगाएंगे, तब तक वो जुमला और सेंटेंस पूरा ही नहीं हो पाएगा. तो बस इसमें मौसूल की पहचान याद रखना, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा. उसकी पहचान ये है कि लफ्ज़ जो जहाँ पर आ जाए, है ना, जुमले में अगर लफ्ज़ जो आ जाए या जिस आ जाए, तो क्या करना है, समझ लेना कि ये इसमें मौसूल है. यही क्या है, इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल है. जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा मैंने वो किताब खरीदी जो कल देखा था, है ना. मैंने वो किताब खरीदी जो कल देखा था, है ना. मैं क्या कहा, जिस किताब को आपने कल देखा था, उस किताब को आज मैंने ख़रीद लिया. जिस किताब को कल मैंने देखा था, उस किताब को आज मैंने ख़रीद लिया. तो कहने का मकसद यहाँ पर क्या है कि वो मैंने वो किताब ख़रीदी, कौन किताब, जो किताब के कल मैंने देखा था, या कल मैंने देखी थी, है ना. तो मैंने उस लड़के को आज भी देखा जिसको कल मैंने होटल पर देखा था. जिसको जिसको यानी मैंने उस लड़के को देखा जिसको मैंने कल होटल पर देखा था. तो लफ्ज़ जिस क्या आ रहा है, मौसूल के लिए.
यानी कि मैंने वो किताब खरीदी जो लफ्ज़ जो यही तो मौसूल है, यही तो मौसूल है। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इसको अगर नहीं लगाएंगे ये जुमलों में, ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी है, और जब तक कि ये नहीं लगाएंगे तब तक जो है ये जुमला और सेंटेंस पूरा नहीं होगा। इसलिए इसमें मौसूल उसी को कहा जाता है। बस इसकी पहचान याद रखेंगे मेरे दोस्तों, क्या, जहाँ लफ्ज़ जो आ जाए पूरा सेंटेंस इसी तरह से देंगे जुमला। वो मैंने वो किताब खरीदी, मेरी वो किताब चोरी हो गई जिसको मैंने कल ख़रीदा था। मेरी वो किताब चोरी हो गई जिसको मैंने कल ख़रीदा था। तो लफ्ज़ जिस क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसमें मौसूल हो जाएगा। मेरी वो किताब चोरी हो गई, देखिए मेरी वो किताब चोरी हो गई, है ना, जिसको या जिसे, है ना, जिसको मैंने कल ख़रीदा था। अब देखो, मेरी वो किताब चोरी हो गई, कौन सी किताब, जिसको मैंने कल ख़रीदा था। मेरी वो किताब चोरी हो गई जिसको मैंने कल ख़रीदा था। तो मेरी वो किताब चोरी हो गई, जब तक आप इसको नहीं लगाएंगे, है ना, जब तक आप इसको नहीं, इस जुमले को नहीं लगाएंगे तब तक आपका जुमला का जो माना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। जुमला का जो माना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इसमें मौसूल इसी को कहा गया, इसमें मौसूल इसी को कहा गया। जब तक आप इसको नहीं लगाएंगे लफ्ज़ जिसको, तब तक ये पूरे सेंटेंस, पूरे जुमले का माना ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसमें मौसूल की पहचान याद रखिए। लफ्ज़ जो आ जाए, जो शख्स, जिस शख्स या जिस जगह, लफ्ज़ जिस हमको देखना है, जो देखना है, जिस देखना है, जिस देखना है, जो देखना है, बस समझ लीजिए वो क्या इसमें मौसूल है। समझ लीजिए क्या हुआ है, इसमें मौसूल है। मज़ाफ किसको कहते हैं, थोड़ा इसको डिटेल से समझिए। इंशाअल्लाह धैर्य और सब्र के साथ में बैठे रहिए और वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिए। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मज़ाफ किसको कहते हैं, मज़ाफ के माने क्या आता है कि जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो, जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। मज़ाफ के माना आता है झुकना। मज़ाफ के माना क्या आता है, झुकना। तो इसका मतलब ये है, जैसे मेरा कलम है ये, है ना, ये कलम अगर दानिश की तरफ अगर झुक रहा है ना, तो समझिए इसका लगाव किसकी तरफ हो रहा है, दानिश की तरफ। ये झुक रहा है दानिश की तरफ, किसकी तरफ, दानिश की तरफ झुक रहा है। जब दानिश की तरफ अगर ये झुक रहा है, इस झुकने को ही क्या कहा गया, मज़ाफ कहा गया, है ना। दानिश की तरफ झुक रहा है, तो जिसकी तरफ झुक रहा है उसी को, वो जिसकी तरफ झुकेगा उसको मुज़ाफ इलैह कहा जाएगा। और जो झुक रहा है, ये कलम झुक रहा है, तो कलम झुक रहा है तो कलम मुज़ाफ हो जाएगा, कलम झुक रहा है कलम मुज़ाफ हो जाएगा। इसका मैं ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ मैं, उसके अलावा मैं और चीज़ भी बताऊँगा इसमें जो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे तो मज़ाफ यानी जिसका लगाव किसी के साथ में हो, है ना, उसी को मज़ाफ कहा जाता है। लेकिन मैं इसको दूसरे अंदाज से मैंने समझाया, जिसका झुकाव वही निस्बत या लगाव, है ना, जिसका झुकाव किसी दूसरी की तरफ हो वही मज़ाफ है। जिसका झुकाव हो वही मज़ाफ है, और जिसकी तरफ झुकाव है वो मज़ाफ इलैह है, वो मज़ाफ इलैह है। एक होता है इसमें हरफ इज़ाफ़त, दो चीज़ें हैं, एक हरफ इज़ाफ़त, इसको सही से समझिएगा। एक होता है मुज़ाफ, एक होता है मुज़ाफ इलैह, है ना। बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें, बहुत कन्फ्यूज़न है, इसको सही से समझिएगा। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। मुज़ाफ जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो, जैसे हामिद की टोपी, हामिद की टोपी। अब यहाँ समझना है कि टोपी का लगाव किससे है, टोपी का लगाव किससे है, मतलब दूसरे अल्फाज में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि टोपी का मालिक कौन है, टोपी किसकी जिम्मेदारी में है, किसके ज़िम्मे में है, यानी टोपी का मालिक कौन है। जो किसी भी चीज़ का मालिक होगा, है ना, मालिक को ही मुज़ाफ इलैह कहा जाएगा, और जिस चीज़ का मालिक बनेगा वो चीज़ मुज़ाफ होगी, है ना, वो चीज़ मुज़ाफ होगी। ठीक है, अब समझाता हूँ। टोपी का मालिक कौन है,
टोपी का मालिक हामिद है, टोपी का मालिक हामिद है ना, कि यानी हामिद की टोपी है। तो टोपी का मालिक कौन हुआ? मालिक तो हामिद हुआ, इसलिए हामिद क्या हो जाएगा आपका? मुजाफ इलैह, यानी मालिक को ही मुजाफ इलैह कहा गया, मालिक को ही मुजाफ इलैह कहा गया। जो टोपी का मालिक है वो क्या है? वो मुजाफ इलैह है। और किस चीज़ का मालिक बना है? वो टोपी का मालिक है। किस चीज़ का? टोपी का मालिक है। तो जिस चीज़ का बनेगा मालिक वो मुजाफ बनेगा, वो क्या होगा? मुजाफ बनेगा। अब हामिद की टोपी में, हामिद की टोपी, अब देखो इसको तीनों तरीके से समझिए। टोपी की निस्बत, टोपी का लगाव हामिद के साथ है, टोपी का लगाव हामिद के साथ में। लगाव कैसे है? लगाव इस एतबार से है और झुकाव इस एतबार से है कि टोपी की मिल्कियत समझी जा रही है कि टोपी की इजाफत, टोपी की निस्बत किसकी तरफ है, मतलब टोपी का मालिक कौन है ना। तो टोपी का मालिक हामिद है, तो ये हो गया, मालिक हामिद हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो जिसका लगाव है, जिसका झुकाव है, ये टोपी झुक रही है हामिद की तरफ, मतलब हामिद की तरफ ये निस्बत हो रही है, हामिद की तरफ निस्बत हो रही है, इसलिए टोपी मुजाफ क्या हो जाएगा? टोपी मुजाफ, इसलिए कि ये टोपी झुक रही है किसकी तरफ? हामिद की तरफ, हामिद की तरफ। जब हामिद की तरफ झुकेगा तो ये हामिद हो जाएगा मुजाफ इलैह, हामिद क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैह। और हमेशा एक चीज़ को याद रखना, हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह किसको कहते हैं, ये समझ में अगर ना आए तो याद रख लेना। हरूफ इजाफत क्या क्या? हरफ इजाफत, हरूफ इजाफत याद रखना थोड़ा सा, जैसे का, के और की, है ना, और है रा, रे और री, है ना, ये हरूफ इजाफत है। का, के, की, रा, रे, री, जैसे उसका, उसके, उसकी, है ना, हामिद का, हामिद की, है ना। तो इस तरीके से, और रा, रे, जैसे तेरा, तेरे, तेरी, ये सब क्या है? हरूफ इजाफत है। जैसे हम इसको बता देते हैं, जो इसमें अब याद रखिएगा, हरूफ इजाफत के बाद, हरूफ इजाफत, हरफ इजाफत ये है, का, के, की, हरफ इजाफत की है। हरफ इजाफत के बाद जो भी इसम आएगा, हरफ इजाफत के बाद जो भी इसम आएगा वो होगा मुजाफ, वो क्या होगा? मुजाफ। और हरफ इजाफत से पहले जो इसम होगा वो होगा मुजाफ इलैह, है ना। समझ में आया? बिल्कुल आसान कि हरफ इजाफत जो है, हरफ इजाफत से पहले जो इसम होगा, हरफ इजाफत से पहले देखो, हामिद की टोपी, ठीक है, हरफ इजाफत ये है कि, हरफ इजाफत क्या है? कि। इससे पहले क्या है? की से पहले हामिद, किससे पहले? हामिद, इसलिए क्या कहा? हरफ इजाफत से पहले जो इस्म होगा वो क्या होगा? वो मुजाफ इलैह होगा। क्या होगा? मुजाफ इलैह होगा। और की के बाद, यानी हरफ इजाफत के बाद जो भी इस्म होगा, ये इस्म है, क्या ये इस्म है और ये भी इस्म है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वो मुजाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजाफ हो जाएगा। अब पूछेंगे इसमें हरफ इजाफत क्या है? हरफ इजाफत लफ्ज़ की है। क्या हरफ इजाफत लफ्ज़ की है? क्यों? का, के, की, रा, रे, री, है ना, ये हरफ इजाफत है। जैसे तेरा कलम, है ना, मेरा कलम, इस तरीके से मेरा में क्या हो जाएगा? अगर मेरा कलम कहेंगे, इसमें ये मुजाफ और मुजाफ इलैह कैसे बनेगा? देखो, मेरा कलम में क्या हो जाएगा? मेरा यानी मैं इसका मालिक हूँ, मेरा में मैं है, इसमें फ़ाइल, मैं क्या है? फ़ाइल। और कलम क्या हो जाएगा? यानी मेरा, ये हो जाएगा रा, रा, इसमें हुरूफ इजाफत रा है। हुरूफ इजाफत क्या है? ये रा है ना, रा, रा ज़बर रा, हुरूफ इजाफत ये है रा। रा से पहले क्या है? मेरा, यानी मैं, मेरा है, तो मैं हो जाएगा यही मुजाफ इलैह। क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैह, ठीक है। और ये कलम क्या हो जाएगा? मुजाफ, क्योंकि रा के बाद है। किसके बाद है? रा के बाद, हुरूफ इजाफत के बाद। इस चीज़ को समझना है कि हुरूफ इजाफत का, के, की, रा, रे, री, मतलब तेरा, तेरे, तेरी, मेरा, मेरे, मेरी, मेरी टोपी, तेरी टोपी, है ना, उसकी टोपी, उसकी, की आ गया,
اس کی، اس کا قلم ہے نا، اس کا گھر، حامد کا گھر، راشد کا گھر ہے نا. تو یہ سب اگر آ جائے تو لفظ حروف اضافت سے پہلے جو بھی اسم ہوگا، حروف اضافت سے پہلے جو بھی اسم ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیے حروف اضافت سے پہلے جو بھی اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. حروف اضافت کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا. اور حرف اضافت یہاں پر کیا ہے؟ لفظ کی ہے. میرے خیال سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں معبود کی طرف. معبود کی طرف. معبود کسے کہا جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. قواعد کا احساس آپ لوگوں کو نہیں ہوگا، جب پرچہ آئے گا تب سمجھ میں آئے گا. چلیے معبود کیا ہوتا ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں. معبود کا مطلب ہوتا ہے جو بات ذہن میں ہوتی ہے کسی خاص چیز کے بارے میں، جیسے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے نا. جیسے اسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جو بات ہے گفتگو بات چیت کے قرینہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے. تو وہی بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو آپ کے ذہن اور دماغ میں ہے، وہی معبود ہے. جیسے میں مثال بتاؤں، آپ کا کوئی دوست بہترین دوست ہے اور وہ آنے والا ہے. آپ کا کوئی بہترین دوست ہے، وہ آنے والا ہے آپ کا گھر، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا دوست کون ہے نا، میرا دوست کون ہے. تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے کہ اگر کسی نے کہا کہ کیا تیرا دوست آنے والا ہے آج، تو کیا کہیں گے؟ ہاں آج میرا دوست آنے والا ہے. اس دوست سے مراد کون دوست ہے؟ وہی دوست ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں وہی دوست میرا آنے والا ہے. تو ذہن میں چونکہ جو دوست ہے وہی معبود ہے. وہی کیا ہے؟ معبود. آپ کے دماغ میں جس دوست کے بارے میں جس کا خیال چل رہا ہے، اور اسی دوست کے بارے میں سوال کیا کہ ہاں آپ میرا دوست وہی ہے، وہ آنے والا ہے. جیسے جو آپ کے دماغ میں جو خیال ہے وہی خیال میں اس دوست کے بارے میں جو سوچا وہی معبود ہے. ایک مثال اور دے دوں. جیسے کہ آپ کو آپس میں کیا کرتے ہیں بچے؟ مشورہ کرتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں ہے نا. کہ بات چیت کیا کرتے ہیں کہ ارے چلنا ہے کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کھیلنے کے لیے چلنا. کیا کھیلنے کے لیے چلنا بھائی؟ کرکٹ کھیلنے کے لیے چلنا ہے. تو کرکٹ کھیلنے کے لیے چلنا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹائمنگ فکس کر دیتے ہیں، فلاں ٹائم پر جانا ہے، فلاں ٹائم پر جانا ہے. اب کیا کیا؟ اب وہ ساتھی ایک دوسرے کے ساتھی کے پاس گئے، اس کے گھر پر گئے، اور گھر پر جیسے ہی گئے اور اس ساتھی کو بول دیا ارے جانا نہیں ہے کیا؟ ارے چلنا نہیں ہے کیا؟ تو اب چلنا نہیں ہے کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس ساتھی کے دماغ میں کیا ہے کہ کہاں جانا ہے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں سوچیں گے. وہ سیدھے جواب دے دیں گے ہاں ہم کو جانا ہے بھائی. کہاں جانا ہے؟ تو اس کے دماغ میں ہے کرکٹ کھیلنے کی بات ہو رہی تھی، تو کرکٹ کھیلنے جانا ہے، ہم کو میدان پر چلنا ہے. تو اس نے جیسے ہی سوال کیا کہ بھائی کہاں چلنا ہے آپ کو، نہیں یہ کہا اس نے کہ چلنا نہیں ہے کیا. تو یہ نہیں کہا کہ کھیلنے کے لیے، کھیلنے کا شبد یوز نہیں کیا، اس نے استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ چلنا نہیں ہے کیا آپ کو، جانا نہیں ہے کیا آپ کو. تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل چلنا ہے بھائی، ٹائم ہو گیا ہم چلتے ہیں. تو حالانکہ کوئی کرکٹ کا کوئی شبد اس میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس دوست کو جواب دیا جا رہا ہے وہ دوست سمجھ گئے کہ کہاں جانا ہے اور کس چیز کی بات ہو رہی ہے. وہ سمجھ گئے کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جانا ہے، کرکٹ کی بات ہو رہی ہے. اس لیے لیکن اس شبد کو اس لفظ کو استعمال نہیں کریں گے، لیکن وہ بات یہاں ذہن میں ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے کو جب بھیڑیا نے کھا نہیں لیا تھا، بلکہ ان کے 11 بھائیوں نے کہا تھا کہ ان کو کیا نام ہے کہ کنویں میں پھینک کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا آ کر کے کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا. یعقوب علیہ السلام اور بیٹے کو اپنے والد صاحب کو کیا کہا تھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس نے کیا سمجھا کہ نہیں بھیڑیا وہ اصل اوریجنل بھیڑیا نہیں ہے، بلکہ وہ 2 ٹانگ 2 پیر والا بھیڑیا ہے، اور اس بھیڑیا سے مراد تم ہی 11 بھائی ہو.
تو भेड़िया से क्या मुराद लिया? तो भेड़िया से क्या मुराद लिया? वो ओरिजिनल जानवर नहीं, बल्कि भेड़िया से वो 11 भाई मुराद थे। तो उनके जहन में ये बात थी कि भेड़िया कह करके वो भेड़िया मुराद है जो 11 भाई हैं। तो जहन में जो बात है, जिसको सोच रहे हैं, तो वही माबूद है। अब समझिए, जो गुफ्तगू और बातचीत के करीना से किसी खास चीज़, जगह या शख्स को बताए, वही क्या है? माबूद है। जैसे दोस्त आया, क्या है? दोस्त आया। अब दोस्त जैसे ही आया बोला, अब दोस्त से मुराद कौन दोस्त होगा? जो आपका खास दोस्त है। बस बोल दिया है आपका दोस्त आ गया, तो वो समझ लेंगे कि दोस्त से मुराद कौन दोस्त है? जो मेरा अपना दोस्त है ना, फलां आदमी, वही आ गए, चलो उठ करके अब चलते हैं, पढ़ाई बंद करो, है ना। तो वो दोस्त से मुराद है, वो माबूद से ही कहा जाता है। मुनादा, एक होता है मुनादा, एक होता है मुनादी, एक होता है हरफ निदा। जैसे मैंने बताया अभी, इसमें इशारा में मुशारुन इलै और मुशार, मुज़ाफ में मुज़ाफ और मुज़ाफ इलै और हरफ इजाफत। इसी तरीके से मुनादा में भी हरफ निदा, मुनादा और मुनादी। मुनादा, पुकारा, जिसको पुकारा जाए वही मुनादा है। जिसको पुकारा जाए वही मुनादा है। जो पुकारने वाला है वो मुनादी है। और जिस हर्फ के ज़रिए से पुकारा जा रहा है वो हर्फ निदा है। जैसे ए दानिश, ए दानिश, किसके ज़रिए से कहा गया? लफ्ज़ ए। पुकारते हैं किस लफ्ज़ से? किस हर्फ से पुकारते हैं? लफ्ज़ ए से, है ना। हर्फ ए है, ए से पुकारते हैं। ए दानिश, ए दानिश, पुकारा किसको गया? पुकारा किसको गया? दानिश को। किसको? दानिश को पुकारा गया। किसको? दानिश को पुकारा गया। दानिश हो जाएगा मुनादा, क्यों? इसी को पुकारा गया है ना। दानिश क्या हो जाएगा? मुनादा, क्यों? दानिश को पुकारा गया है। तो जिसको पुकारा जाए वही मुनादा है। और पुकारने वाला जो भी होगा वो मुनादी होगा। पुकारने वाला जो भी होगा क्या होगा? वो मुनादी होगा। बात समझ में आई कि मुनादा किसको कहते हैं? मुनादा करते हैं जिसको पुकारा जाए। मुनादा किसको कहते हैं? जिसको पुकारा। मुनादा, पुकारा। मुनादा किसको कहते हैं? जिसको पुकारा जाए, है ना। ए हलीमा, है ना। ए हलीमा जैसे ही कहा तो क्या समझ में आया कि हलीमा को पुकारा गया है। तो हलीमा को पुकारा, तो हलीमा मुनादा। और किस हर्फ से पुकारा? लफ्ज़ ए से। लफ्ज़ ए से, ए हलीमा, तो लफ्ज़ ए हरफ निदा हो जाएगा। लफ्ज़ ए हरफ निदा। बहुत पूछा जाता है इसमें हरफ निदा क्या है? हरफ निदा और मुनादा, है ना। और एक होता है मुनादी, मुना पुकारने वाला। और मुनादा होता है जिसको पुकारा जाए, है ना। हरफ निदा जिस हर्फ से पुकारा जाए, जिस हर्फ से पुकारा जाए, है ना। जिस हर्फ से पुकारा जाए उसे क्या बोलते हैं? हरफ निदा। निदा के माना आवाज़। निदा के माना क्या है? आवाज़। अल्लाह ने गैब से निदा लगाई, है ना। ये गैब से निदा आई, गैब से सदा आई या निदा आई। तो निदा के माना आवाज़। निदा के माना आवाज़। तो आवाज़ लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, है ना। तो ऐसे, हालांकि बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जिसके ज़रिए से हम दूसरों को पुकार सकते हैं अपने अपनी ज़बान में, अपने अपनी भाषा में। लेकिन वो सब के सब बेअदबी और बेएहतरामी की बात है ना। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड और सबसे माकूल और सबसे बेहतरीन हरूफ हरफ ए है। और अरबी में या है, या अल्लाह, है ना। या खुदा, या अल्लाह, या खुदा। लफ्ज़ या अरबी में क्या है? लफ्ज़ या। इसी का उर्दू तर्जुमा आय है ना। या अल्लाह में अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह हो गया मुनादा। और या हरफे निदा, या हरफे निदा। और अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह क्या हो गया? मुनादा। अल्लाह क्या हो गया? मुनादा। ठीक है। ऐ खुदा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ, है ना। ऐ क्या हो गया? हरफे निदा। मेरे मौला, मौला क्या हो गया? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन हो गया? ये मुनादा हो गया जिसको पुकारा जाए। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, याद रखेंगे कि इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मुज़ाफ़ है, इसमें मुनादा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मुनादा तो बहुत ज़्यादा, बहुत पूछा जाता है मुनादा। मुज़ाफ़ भी हर
چیپٹر میں سمجھ لو کہ اس میں ہر پرچے میں آتا ہے، اور اس میں اشارہ بھی ہے نا، اس میں اشارہ بھی، اور اس میں ضمیر بھی، اس میں ضمیر بھی، جہاں جہاں میں نے اشارہ کیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو پوچھا ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا اسم معرفہ کی ایک قسم اسم علم ہے، ٹھیک ہے، اسم علم یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے نا۔ اسم علم کی 5 قسم ہے، اسم علم کی 5 قسمیں ہے، اتنا زیادہ ہر پرچے میں بھر بھر کے یہ سوال کوشچن آتا ہے، بھر بھر کے بالکل دیا جاتا ہے۔ خطاب کس کو کہتے ہیں، لقب کس کو کہتے ہیں، تخلص کس کو کہتے ہیں، کنیت کس کو کہتے ہیں، عرف کس کو کہتے ہیں، ہے نا، بھر بھر کے دیا جاتا ہے۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ میں آپ حضرات کو سمجھا دوں گا۔ بس صرف پہچان بھی یاد رکھنا ہے کہ دیکھیے خطاب، دیکھیے خطاب کس کو کہتے ہیں، اس چیز کو سمجھیے۔ سرکار کی جانب سے جو کچھ اچھا نام ایوارڈ دیا جاتا ہے، سرکار کی جانب سے ہوتا ہے وہ، اسی کو خطاب کہا جاتا ہے نا۔ جو اعزازی نام دیا جاتا ہے، جیسے بھارت رتن ہے نا، یہ سرکار کی جانب سے ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے ہوتا ہے۔ بھارت رتن ہے، بھارت کیا پدم بھوشن ہے، پدم شری ہے نا، خان بہادر ہے نا، پدم شری، بھارت رتن، خان بہادر، سر سید، لفظ سر سید میں سر جو لگا ہوا ہے یہ بھی خطاب ہے۔ 1778 میں اس کو برٹش سرکار نے، برٹش حکومت نے سر سید کو دیا تھا۔ تو جو حکومت کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جائے کسی خوبی کو دیکھ کر کے کہ یہ اچھا انسان ہے، بڑھیا اس نے کام کیا ہے، اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، اس کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے سرکار نے فیصلہ کیا کہ نہیں اس کو کچھ ایوارڈ ملنا چاہیے، اس کو کچھ اعزازی طور پر اس کو کچھ نام، اس کو انعام دیا جائے یا اس کو کچھ اعزاز دیا جائے، تو اس اعزازی طور پر اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے، اسی کو خطاب کہا جاتا ہے۔ بس یاد رکھیں خطاب اور لقب میں بس 2 ہی فرق ہے، ایک ہی فرق ہے، خطاب جو ہوتا ہے وہ سرکار کی طرف سے ہوتا ہے، اور لقب جو ہوتا ہے وہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خطاب سرکار کی جانب سے، حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور لقب جو ہوتا ہے وہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے نا، اور خطاب حکومت کی طرف سے، لقب عوام کی طرف سے۔ اس میں یہ بالکل اس کو یاد رکھ لینا ہے، یہ خطاب ہے، کیا ہے سب؟ خطاب ہے نا، خطاب ہے۔ سر سید، لفظ سر کیا ہے؟ یہ خطاب ہے۔ خان بہادر اگر کسی کو ملا ہے، خان بہادر کہا گیا ہے، لفظ خان بہادر کیا ہے؟ لقب ہے، خطاب ہے، اس کو رٹ لینا ہے۔ خان بہادر سر سید کیا ہے؟ یہ رٹ لینا، خان بہادر خطاب ہے، خان بہادر کیا ہے؟ خطاب ہے، لقب نہیں ہے۔ خان بہادر کیا ہے؟ خطاب ہے۔ بھارت رتن، پدم شری، پدم بھوشن ہے نا، یہ کیا ہے؟ خطاب ہے، لقب نہیں ہے۔ لقب میں کیا ہوگا؟ جیسے بلبل ہند، شیر خدا ہے نا، کوئی اگر اچھا انسان اگر کوئی ہے یا پھر ہمت والا اگر کوئی ہے نا، جیسے حضرت علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیر خدا ہے نا، خدا کا یہ شیر ہے کہ غزوہ خیبر کے دروازے کو اس نے اکیلے توڑ دیا تھا ہے نا، اسی وجہ سے کہا یہ تو خدا کا شیر ہے، تو شیر جیسی طاقت اس کے اندر تھی، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ شیر خدا۔ کیا پڑ گیا؟ شیر خدا ہے نا۔ کوئی اگر یہاں پر ہندوستان میں اگر کوئی اگر بڑھیا دبنگ آدمی اگر اچھا ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ شیر ہندوستان ہے نا۔ کسی کو اگر کہا جاتا ہے، جیسے بنگال میں کوئی اگر دبنگ آدمی ہو ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ شیر بنگال۔ تو کہنے کا مطلب طاقت اگر اس کے اندر ہے، ہمت و حوصلہ اگر ہے، ہمت و حوصلہ کی بات کریں، ہمت و حوصلہ اور طاقت و قوت اگر ہے، اس کو اس بہادری کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کہا جاتا ہے، یا شیر بہار کہا جائے گا اگر بہار کا کوئی ہے، شیر بنگال کہا جائے گا، شیر حیدرآباد کہا جائے گا اگر حیدرآباد کا کوئی ہے۔ تو بلبل ہند، بلبل ہند کسے کہا جاتا ہے؟ بلبل کا مطلب ایک چھوٹی سی پرندہ ہے، چڑیا ہے، بہت مشہور و معروف ہے۔ تو اگر اس جیسے اگر آواز اگر ہو جائے کسی کی تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہندوستان میں رہی تو بلبل ہند جیسی اس کی آواز ہے نا، کیا ان کی آواز کے اندر کشش ہے، اسے تو بلبل ہند کہا جانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اس کو بلبل ہند۔ طوطی ہند، طوطی ہند بھی کیا ہے؟ طوطی ہند، بلبل ہند، شیر خدا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سرکار اور حکومت کی جانب سے یہ سب ایوارڈ اعزاز نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ یہ اگر کہا جاتا ہے عوام کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ سب الفاظ جو ہیں
یہ لقب ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یہ سب لقب ہے، کیا ہے؟ لقب ہے، القاب اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تخلص، تخلص کس کو کہتے ہیں؟ تخلص جو ہوتا ہے شاعر حضرات یا شاعرات جو ہوتے ہیں، یا پھر جو کتاب کے لکھنے والے ہیں، مصنف ہے نا، جو رائٹر ہیں، جو لیکھک ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لیکھک، رائٹر، مصنف کیا کرتے ہیں؟ اپنا اصلی نام نہیں لگاتے ہیں، بلکہ اپنے اصلی نام کی جگہ پر بدلے میں کوئی ایک چھوٹا سا مختصر سا نام رکھ لیتے ہیں، اور اسی مختصر نام کا وہ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ وہ پورا نام کہیں نہیں لکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا صرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے میر تقی میر، میر تقی میر میں یہ کیا کرتے ہیں؟ میر، صرف میر کہیں گے تو میر سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ میر سے یہ تخلص اس کا ہے۔ غالب، غالب جو ہے یہ غالب پورا نام نہیں لکھیں گے، مرزا اسد اللہ خان غالب نہیں لکھیں گے، صرف کیا کریں گے؟ صرف غالب لکھ دیں گے۔ تو غالب سے کون مراد ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کہیں بھی شاعری میں، اپنے اشعار میں مرزا اسد اللہ خان غالب نہیں لکھیں گے، شارٹ میں صرف اور صرف غالب لکھیں گے۔ خواجہ الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین حالی، ہے نا، یہ پورا نام نہیں لکھیں گے، اس پورا نام کو کٹ کر دیں گے، صرف وہ حالی لکھیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حالی سے خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو کہیں بھی وہ اشعار لکھیں گے، شعر وغیرہ جو لکھیں گے، تو اس میں کیا کریں گے؟ وہ یہ خواجہ الطاف حسین حالی پورا نام نہیں لکھتے ہیں، صرف حالی لکھتے ہیں۔ حالی سے مراد کیا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی ہے، یعنی شاعر کا، شاعرات یا شاعروں کا وہ نام، وہ اصلی نام کی جگہ وہ مختصر سا چھوٹا سا نام ہوتا ہے جو رکھ لیتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ اپنے اشعار میں استعمال کرنے کے لیے، ہے نا۔ جو مصنف وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جو کتاب کو لکھتے ہیں، لیکھک ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنا ایک چھوٹا سا نام، مختصر سا نام رکھ لیتے ہیں، جس کے بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اصلی نام، پورا نام نہیں لیتے ہیں، وہ چھوٹا نام ہی لیتے ہیں، مختصر نام لیتے ہیں اور لکھتے ہیں کتاب میں، اور اپنا شاعر لوگ، شاعرات لوگ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، اسی کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تخلص مطلب اپنا وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں، مختصر چھوٹا سا نام ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا غالب، حالی، ٹھیک ہے۔ کنیت، یہ کنیت پڑھتے، کنیت یہ لفظ ہے، کنیت، کیا ہے؟ کنیت، یہ شبد کیا ہے؟ کنیت لفظ ہے یہ، کنیت، کنیت جو رشتے کے تعلق سے پکارا جائے۔ اب جو رشتے کے تعلق سے پکارا جائے، یہ بات سمجھ میں تو خیر آ رہی ہے، لیکن اس کی ہم پہچان بتا دیتے ہیں جو بالکل فٹ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف آپ کو یہ صرف یاد رکھنا ہے، ابو، ابن اور بنت اور ہے نا، ابو، ابن، بنت، کنیت کا بس یہی، کنیت میں یہی چاروں الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو کنیت کا پتہ بتا دے گا کہ ہاں یہ آنکھ بند کرو اور سیدھے ٹک لگا دو، یہ کنیت ہے۔ جہاں ابو آ جائے، ابو سے مراد دیکھو، ابو الحسن، ابو بکر، ہے نا، ابو الحسن، ہے نا، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ہے نا، تو اس میں ابو آ گیا نا، ابو آ گیا نا۔ اگر کوئی پوچھ لے ابو الحسن یہ کیا ہے، کنیت ہے، عرف ہے، تخلص ہے، خطاب ہے، کیا ہے، سیدھے آنکھ بند کرو، ہے نا، بنا کسی جھجک، کیا نام ہے، بنا کسی جھجک کے ڈائریکٹ اس پر لگا دو ابو، چونکہ کیا ہے؟ ابو یہ کنیت کی پہچان ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ ابو کنیت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابن، ابن والی مثال جیسے ابن مریم، ہے نا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ابن مریم، جیسے کسی کا نام اگر ہوگا اس کے ساتھ میں ابن لگاؤ، جیسے جیسے کیا کہا، دانش، ہے نا، ابن سجاد، ہے نا، دانش ابن سجاد، تو ہم کیا کریں گے؟ دانش ابن سجاد کو کیا کریں گے؟ صرف دانش نہ بول کر کے ہم کیا بولیں گے؟ ابن سجاد صرف بولیں گے۔ ابن سجاد جیسے ہی بولیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ابن لگا ہوا ہے، اس بنیاد پر یہ کنیت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا، چونکہ ابن لگا ہوا ہے۔ بنت، جیسے بنت حوا بولیں، ہے نا، بنت حوا بولیں، یا پھر بنت عائشہ بولیے، ہے نا، بنت عائشہ بولیے، تو
जहाँ बिन्त आयशा लग गई है, बिन्त सिर्फ हमको पहचानना, जहाँ बिन्त लगा हुआ है उसका कहना है कि ये बिन्त लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा। लगा हुआ है, जैसे उम्मे हबीबा, उम्मे कुलसूम है ना, उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा है, उम्मे कुलसूम, लफ्ज़ लगा हुआ है, इस बुनियाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुन्नियत। बस आपको सिर्फ ये 4 अल्फाज याद रखने हैं, अबू इब्न, अबू इब्न बिन्त अबू मना आता है बाप, अबू में क्या आता है, बाप, और इब्न मना आता है बेटा, है ना, इब्न मना आता है बेटा, बिन्त मना आता है बेटी, और के माना आता है माँ, है ना। ये रिश्ते का नाम हुआ, इस रिश्ते के नाम से पुकारा जाता है ना। कहते हैं किसी का नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे, उसको सीधे बोल देंगे क्या, ए अबू हुरैरा, यानी अबू हुरैरा इधर आइए। अबू हुरैरा का मतलब क्या हुआ, हुरैरा के बाप, है ना। अबू तलहा, ए तलहा के बाप इधर आइए, है ना। किसी का नाम रख दिया तलहा, क्या कहा, ए तलहा के बाप इधर आइए, तलहा के अब्बू। तो कहने का मकसद क्या है, बस ये सब तफसील की ज़रूरत नहीं है अभी, बस सिर्फ इतना बता दूँ, इसकी पहचान याद रखिए। कुन्नियत जो रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, बस जहाँ पर भी लफ्ज़ अबू देखेंगे, जहाँ पर भी लफ्ज़ अबू देखेंगे बस समझना अबुल हसन में अबू लगा हुआ है इसलिए कुन्नियत हो जाएगा। अबू हुरैरा में लफ्ज़ अबू लगा हुआ है इसलिए कुन्नियत हो जाएगा, क्योंकि अबू कुन्नियत की पहचान है। इब्न, इब्न मरियम में इब्न लगा हुआ है इसलिए हमको इब्न को देखना है, अबू को देखना है, इब्न को देखना है, बिन्त को देखना है, बिन्त कहाँ है कि नहीं। बिन्त अगर होगा सीधे कुन्नियत पर टिक लगाएंगे, है कि नहीं, अगर लगा हुआ कहीं तो सीधे कुन्नियत पर हम टिक लगाएंगे। बस समझ में आ गया मेरे ख्याल से, इसको दोबारा देख लेंगे तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। अब आ गया उर्फ़। उर्फ़ पुकारो नाम को कहा जाता है मेरे अजीज़। पुकारो नाम, जिसको अपने घर में किसी का नाम रखते हैं, असली नाम होता है, और एक होता है पुकारो वाला नाम। किसी को अगर अच्छाई की बुनियाद पर भी उसका अच्छा नाम रखते हैं, पुकारो नाम रखते हैं, है ना। और किसी की नफ़रत की वजह से जो है ना उसको गंदा नाम, ख़राब नाम रख देते हैं। तो नफ़रत या हक़ारत की नज़र से कोई नाम अगर पुकारो नाम अगर रख दे, पुकारो नाम को ही उर्फ़ कहा जाता है। जैसे किसी का नाम कलीमुद्दीन है, कलीमुद्दीन है, अब उसको क्या कहते हैं लोग, कलीमुद्दीन को कहने लगे कल्लू, कल्लू, है ना, कल्लू। तो कल्लू क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितना मैंने बताया सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। इस टाइम में चूँकि वक्त कम है इसलिए मैं खुद ही उस चीज़ को सोच रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही मटेरियल दिया जाए जो कम वक्त में आपको वो सब काम आ जाए। इसलिए ज़्यादा हमको उधर बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत इख्तिसार के साथ मैं भी चल रहा हूँ। आप लोग सब्र के साथ में देखते रहिए। उर्फ़ हो गया कल्लू। जैसे किसी का नाम कुछ और है उसको क्या पुकारा गया, चुन्नू। किसी का नाम मुनीरुद्दीन, उसका बोला तो मुन्नू या मुन्ना मुनीरुद्दीन, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये पुकारो नाम है, सब क्या है, पुकारो नाम है। लोग लोग बस्ती में, गांव घर में पुकारते हैं जिस नाम से, असली नाम को छोड़ करके जिस नाम से पुकारते हैं वही पुकारो नाम ही क्या हो जाएगा, हमारा उर्फ हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे खिताब किसको कहते हैं, लक़ब किसको कहते हैं, तखल्लुस किसको कहते हैं, कुन्नियत किसको कहते हैं। तो खिताब सरकारी जो नाम होता है, सरकार की जानिब से जो मिलता है। लक़ब जो क्या नाम है कि आवाम की तरफ से दिया जाता है। तखल्लुस मुख्तसर नाम, जो शायर लोग अपना असली नाम छोड़ करके दूसरी जगह छोटा नाम इस्तेमाल करते हैं। कुन्नियत जिसमें अबू इब्न बिन्त आ जाए, अबू इब्न बिन्त अबू इब्न बिन्त ठीक है। और उर्फ किसको कहते हैं, पुकारो नाम को कहा जाता है। कल्लू, कल्लू, चुन्नू, मुन्नू, ठीक है। बस खिताब के लिए इसको याद रखना है, सर सैयद में सर क्या है, खिताब है। खान बहादुर खिताब है। भारत रत्न क्या है, खिताब है। पद्म भूषण, पद्म श्री क्या है, ये सब खिताब है ना। ये सब खिताब इसको रट लेना है। खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब क्या है, खिताब है। और ये सब क्या है, लक़ब। बुलबुल हिंद, शेर खुदा, तोतिए हिंद, ये सब क्या है, लक़ब है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर आगे बता रहा हूँ, देखते रहिए।
आपके सामने इसम की दो किस्में, माने के एतबार से इसम की दो किस्में थी, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। हमको बताना असल में ये है सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी और सिफत मिक़दारी। चूँकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिफत निस्बती, सिफत आददी और सिफत मिक़दारी तो बिल्कुल भर भर के सवाल इससे आता है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको समझने से पहले हम पहले इसमें ज़ात इसमें सिफत को समझेंगे कि इसमें ज़ात या इसको मौसूफ भी कह सकते हैं, है ना। देखिए अब ज़ात किसको बोलेंगे और सिफत किसको बोलेंगे। देखिए जो तारीफ़ आपने नकीरा की थी, किसी आम चीज़ या शख्स के नाम को क्या कहते हैं, इसमें ज़ात कहते हैं। ज़ात क्या होता है किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना, जिसकी भी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है ना, वही इसमें ज़ात है। जिसकी बुराई या अच्छाई बयान की जा रही है, जिस शख्स की बुराई या अच्छाई बयान की जा रही है तो वही शख्स इसमें ज़ात हो गया। या जिस चीज़ की अच्छाई खूबी या ख़राबी बयान कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी खूबी ख़राबी बयान कर रहे हैं, वही चीज़ इसमें ज़ात हो जाएगी। और उसी को मौसूफ भी कहा जाएगा। उसको क्या कहते हैं, मौसूफ। मौसूफ इसे कहा जाता है। इसमें सिफत, सिफत किसको कहते हैं, खूबी या ख़राबी को बयान करना, खूबी या ख़राबी को बयान करना। किसी की खूबी या ख़राबी को बयान कर रहे हैं, उसी को इसमें सिफत कहा जाता है। वही इसमें है जो किसी जगह या शख्स के मुताल्लिक़ बताए, है ना, बयान करे, किसी की खूबी या ख़राबी को बताए। जैसे क्या कहा कि हामिद अच्छा लड़का है। हामिद क्या है, अच्छा लड़का है। तो हामिद की अच्छाई के बारे में बता रहा है कि हामिद अच्छा है, इसलिए हामिद क्या हो जाएगा, हामिद तो हो जाएगा मौसूफ या इसमें ज़ात, लेकिन अच्छा होना उसकी खूबी है, इसलिए अच्छा इसमें सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हामिद अच्छा लड़का है। तो हामिद चूँकि ये क्या हो जाएगा, इसको ज़ात भी बोलेंगे और इसी को हम मौसूफ भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी को मौसूफ भी बोलेंगे। हामिद अच्छा लड़का है, और ये अच्छा क्या है, ये अच्छा हमारा सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिफत हो जाएगा अच्छा, है ना। क्योंकि अच्छाई बयान कर रहे हैं किसकी, हामिद की, तो जिसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं तो वही ज़ात इसमें ज़ात हो जाएगा, और वही इसमें मौसूफ भी कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा काली टोपी, काली टोपी, तो काली टोपी में याद रखिए, काली टोपी, है ना। काली टोपी में ये बताओ कि इसमें ज़ात इसमें कौन है, इसमें सिफत कौन है। ज़ात देखिए टोपी, चूँकि टोपी तो कोई भी कलर की हो सकती है, लेकिन मैंने काली कहा है तो टोपी काली यानी काली टोपी है। तो टोपी की खुसूसियत क्या बयान कर रहे हैं, उसके कलर को बयान कर रहे हैं, वो काली है। टोपी क्या है, काली है। तो काला होना या ग्रीन होना, हरा होना, लाल होना, ये सब क्या है, उसकी एक सिफत है ना। उसे क्या है, विशेषण जिसको बोला जाता है, विशेषण हिंदी में विशेषण है ये, है ना। तो टोपी क्या है, टोपी क्या है, ये इसमें ज़ात हो जाएगा, है ना। इसी को मौसूफ भी कहते हैं, इसी क्या कहते हैं, मौसूफ भी कहते हैं। और तो काली क्या हो जाएगी, काली सिफत है ना, विशेषण क्या है, विशेषण है ना। तो तेज घोड़ा, तेज घोड़ा, घोड़ा के अंदर बता रहे हैं घोड़ा कैसा है, तेज दौड़ने वाला है। घोड़ा क्या है, तेज दौड़ने वाला, तेज घोड़ा। तो घोड़ा हमारा क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा इसमें ज़ात इसमें सिफत। चूँकि घोड़े के बारे में, घोड़े के मुताल्लिक़ बता रहा है कि घोड़ा तेज़ दौड़ने वाला है या तेज़ है, तो तेज़ हो जाएगी सिफत, तेज़ क्या होगा, सिफत। और तो घोड़ा क्या हो जाएगा, इसमें ज़ात या इसमें मौसूफ, है ना, इसमें ज़ात। चूँकि घोड़े के बारे में बता रहे हैं, तो किसी के बारे में अगर बताए तो वही क्या चीज़ है, इसमें ज़ात है, उसी को इसमें मौसूफ कहा जाता है। इसमें सिफत किसी जगह शख्स के मुताल्लिक़ बताए, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि किसी की अच्छाई या बुराई को अगर बयान कर रहे हैं, तो जिसकी भी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, जिस चीज़ की भी या जिस शख्स की भी, वही चीज़ या वही शख्स इसमें ज़ात है या इसमें मौसूफ है। और अच्छाई या बुराई जो बयान हो रही है,
वही अच्छाई या बुराई या खूबी या खराबी कुछ भी हो, अंधा होना, लंगड़ा होना, काना होना, है ना, ये सब के सब उसके अच्छाई या बुराई या खूबी खराबी है, तो ये चीज़ सिफत हो जाएगी। जैसे मैंने एक मिसाल और भी दे दी, जैसे साजिद, है ना, साजिद क्या है? अंधा है। साजिद क्या है? अंधा है। अब ये बताइए कि अंधा होना उसकी सिफत है कि नहीं, विशेषण है कि नहीं? अंधा होना उसका विशेषण है, उसकी सिफत है, उसका गुण है। एक सिफत गुण को भी कहा जाता है, उसका एक गुण है। तो बताइए कि अंधा कौन है? साजिद। तो साजिद के बारे में बताया जा रहा है, साजिद के मुताल्लिक बताया जा रहा है कि साजिद ही अंधा है, साजिद अंधा है। तो साजिद इसमें ज़ात हो गया, अंधा सिफत हो गया। अंधा क्या हो गया? सिफत। और ये इसमें ज़ात या मौसूफ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब चलते हैं, दोनों वही चीज़ है। इसमें सिफत जो थी ना, इसकी 4 किस्में थी। यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम इसी चीज़ को बताने के लिए हम इसको ये बताना पड़ा है। तो पहले हम इसमें ज़ात को बता देंगे, उसके बाद इसमें सिफत बता देंगे, तब समझ में बात आ जाएगी कि किसको कहते हैं। सिफत ज़ाती वही चीज़ है, वो सिफत जिससे मौसूफ की बातनी या ज़ाहिरी वस्फ़ को बताए। जो मैंने मिसाल दी है वही सिफत ज़ाती है, कि किसी की अच्छाई या बुराई को बयान कर रहे, चाहे वो ज़ाती हो, ज़ाहिरी हो या बातिनी हो। बातिनी का मतलब उसके अंदर की चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे कि अच्छा होना आपके नज़र, आप उसको देख नहीं सकते, अच्छा है या ख़राब है, उसके अंदर की चीज़ें है ये, है ना। अच्छा होना किसी इंसान को देख करके पता नहीं लगा सकते कि अच्छा है या ख़राब है, बल्कि उसके साथ आपको रहना होगा, तब समझ में आएगा कि अच्छा है या ख़राब है। तो सिफत ज़ाती वही चीज़ है। काला होना ये दिखाई देता है, ये बातिनी चीज़ है ना। तो खैर, अच्छा होना, ख़राब होना, अंधा होना, काना होना, है ना, ये सब के सब सिफत ज़ाती की मिसाल है, सिफत ज़ाती है वो। और सिफत निस्बती क्या है? ये इतना ज़्यादा पूछा जाता, कहने की हद नहीं, कि जिसमें मौसूफ का लगाव को बयान करे, है ना। जो मौसूफ है उसका लगाव कहाँ से है, ताल्लुक़ निस्बत कहाँ से है ना। जैसे किसी चीज़ की तरफ हो, वो सिफत है जिसमें मौसूफ का लगाव किसी चीज़ की तरफ हो। जैसे उसकी मिसाल बताई थी, सिफत निस्बती की मिसाल, जैसे पहाड़ी क्या है? पहाड़ी, है ना। या फिर इसकी मिसाल ले लीजिए, बिहारी क्या है? बिहारी। जहाँ पर ये या आ जाए, ये वाली या जहाँ पर आ जाए, वो समझ लीजिएगा सिफत निस्बती है। वो क्या है? सिफत निस्बती है। एक दूसरी बात, रंग से रंगीला, रंग से रंगीला, है ना, रंगीला। निस्बत और ताल्लुक़ बता रहे हैं कि रंग का ताल्लुक जो है, क्या नाम है कि रंगीला, रंग से क्या बनता है? रंगीला बनता है। बिहार से बिहारी बनता है। अगर कोई आदमी हिंदुस्तान का रहने वाला है, उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, इसलिए उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। अगर कोई आदमी ईरान का है, तो ईरान का रहने वाला है, उसका ताल्लुक ईरान से है, इस बुनियाद पर उसे ईरानी कहा जाता है। अगर किसी का ताल्लुक झारखंड से है, यानी झारखंड से बिलोंग करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? झारखंडी कहा जाता है। तो इसी तरीके से कोई अगर पहाड़ पर रहने वाला है, तो उसे पहाड़ी कहा जाता है, इसलिए कि उस आदमी का ताल्लुक़ पहाड़ से है, पहाड़ पर रहने से है, इस बुनियाद पर उसे पहाड़ी कहा जाएगा। किसी इंसान का ताल्लुक़ अगर जंगल से है, जंगल में ज़्यादा ज़िंदगी बसर करता है, उसे जंगली कहा जाता है ना। तो जंगली, पहाड़ी, बिहारी, ज़्यादातर इसमें लफ्ज़ या जो आ रही है, इसको देखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये निस्बती सिफत निस्बती हो जाएगी, है ना। इसी की मिसाल ज़्यादा देते हैं वो, सिफत निस्बती में इसका ताल्लुक़ किसी के साथ में हो। तो पहाड़ी का ताल्लुक़ पहाड़ से है, बिहारी का ताल्लुक़ बिहार से है, हिंदुस्तानी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, झारखंडी का ताल्लुक़ कहाँ से है? झारखंड से है। हिंदुस्तानी का ताल्लुक़ कहाँ से? हिंदुस्तान से। झारखंडी का ताल्लुक़ झारखंड से। ईरानी का ताल्लुक़ ईरान से, यानी कि ईरानी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान से। चलो, सिफत ज़ाती, सिफत आददी और सिफत मिक़दारी। आदद के माना आता है गिनती, आदत के माना क्या आता है? गिनती। आदत के माना क्या है? गिनती। क्या आता है? गिनती। जिससे कि गिनती समझ में आए, 1 2 4 5 6 8 10, कुछ भी गिनती समझ में आए, वो समझ लीजिएगा वो क्या है? सिफत आददी है। आदद के माना गिनती, तादाद, इसी से संख्या, है ना।
आददी, आदत के माना समझना गिनती, आदत के माना क्या है गिनती। बोल दिया 4 लड़के आए, 4 लड़के मेरे पास हैं, तो 4 उसमें क्या आया 4, 4 एक आदद है, गिनती है, संख्या है, इसलिए 4 लड़के आए। इस चीज़ को याद रखना, जिस चीज़ को हम गिनती करके दे सकते हैं, ले सकते हैं, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, आम तौर पर उसका रिवाज है समाज में गिनती करके लेने का, देने का, तो ख़रीदने का, तो उस चीज़ को सिफत आददी कहा जाता है ना, सिफत आददी कहा जाता है। मैंने क्या बताया, मिटाने वाला एक बात को याद रखिए, मैंने कहा कि 10 कलम दे दीजिए, है ना, 10 कलम दे दीजिए। अब ये बताइए इसमें आदद और संख्या को कहा या नहीं, 10 कलम, 10 कलम, तो 10 चूँकि आदद है, संख्या है, इसीलिए, और कलम को भी गिनती करके ले सकते हैं, दे सकते हैं, गिन सकते हैं, समाज में ऐसा करते हैं, तो 10 कलम आदद आ गया। इस बुनियाद पर इसको क्या कहेंगे कि 10 कलम दे दीजिए में 10 क्या है, ये सिफत है, लेकिन क्या है, सिफत आददी है, सिफत मिक़दारी नहीं है। मिक़दारी में क्या होता है, इसको थोड़ा हटाओ, जाए इस पर। मिक़दारी में क्या होता है, मिक़दारी में मौसूफ की मिक़दार मालूम होती है, मिक़दार मतलब क्या होता है, नाप, तौल, वज़न। जो चीज़, इसको इस तौर पर समझिए, जो चीज़ आम तौर पर वज़न करके या नाप करके बेची जाती है उसे मिक़दार कहा, सिफत मिक़दारी कहा जाता है। अब जाएंगे दुकान पर कपड़ा ख़रीदने के लिए, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि हमको आप 1 किलो कपड़ा दे दीजिए, नहीं, क्यों कि कपड़े का रिवाज, कपड़ा ख़रीदने का रिवाज जो है किससे है, मीटर से है ना। कपड़ा खरीद, आप कुर्ता बनाने के लिए ले जाएंगे, कपड़ा ये ख़रीदना है, उसको नहीं कहेंगे 2 मीटर, हमको 4 क्या है, उसको कहेंगे 4 मीटर कपड़ा दीजिए, 5 मीटर कपड़ा दीजिए, मीटर का इस्तेमाल करेंगे, गज़ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, किलो का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए कि आम तौर पर उसका रिवाज उर्फ़ में या फिर समाज में नहीं है, बल्कि समाज में किस चीज़ का रिवाज है, मीटर का, गज़ का, है ना, 4 मीटर कपड़ा दीजिए। अब जाएंगे केला लेने के लिए, और केला में क्या दर्जन का इस्तेमाल करते हैं, तो 4 दर्जन, 5 दर्जन, है ना, तो चूँकि ये मिक़दार है, जो चीज़ नाप करके या तौल करके दी जाएगी, तो 4 दर्जन, 5 दर्जन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिफत अददी में हो जाएगा, गिनती में हो जाएगा, है ना। और सिफत मिक़दारी में क्या होगा, सिफत मिक़दारी में नाप करके, जैसे सेब लेने के लिए जाएंगे, उसको क्या करते हैं, आप 2 किलो सेब दीजिए, 1 किलो सेब दीजिए, उसको नाप करके लेते हैं। तो 1 सेब या 2 सेब बहुत नहीं लेते उस तरीके से पीस के हिसाब से, बल्कि उसको क्या करते हैं, नाप करके या तौल करके उसको लेते हैं, तौल करके लेते हैं। चावल लेना है, चावल एक चावल करके नहीं लेते हैं, चीनी लेते हैं, एक चीनी नहीं लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसको नाप करके लेते हैं, 1 किलो 2 किलो हमको चीनी दे दीजिए। जो चीज़ नाप करके बेची जाती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे सिफत मिक़दारी कहा जाता है। और जो चीज़ तौल करके बेची जाती है, जैसे ना तौल करके चीनी है, चावल है, गेहूँ है, क्या करते हैं, ये तौलते हैं। नापते क्या हैं, नाप पैमाने से नापा जाता है, लीटर भी नापा जाता है ना। लीटर क्या करते हैं, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, या फिर मतलब कि 1 लीटर, 2 लीटर पेट्रोल, डीजल, तेल, है ना, ये सब लीटर से क्या करते हैं, नापते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, जो चीज़ आम तौर पर समाज में नाप करके दी जाती है या ली जाती है या तौल करके ली जाती है या दी जाती है, उसे ही मिक़दारी कहा जाता है, सिफत मिक़दारी कहा जाता है, ठीक है ना। चावल, 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, है ना। अब ये बताइए, हालांकि 4 यहाँ पर भी है और आपका 10 यहाँ पर भी था, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ भी आदद है और यहाँ पर भी तो आदद है, लेकिन इसको आप जो है गलत कर जाएंगे और आप इसको सिफत आददी लगा करके आ जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि गलत उससे कभी नहीं करेंगे, कि जो चीज़
नाप करके या तौल करके दी जाती है उसे ही मिक़दारी कहा जाता है। अब ये बताइए, क्या चावल को एक एक करके लेते हैं, क्या पीस पीस करके लेते हैं? इसका रिवाज है? नहीं, इसका रिवाज किससे है? तौल करके, है ना, तौल करके लेते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो तौलते हैं। अगरचे यहाँ पर 4 किलो आपको समझ में आ रहा, 4 ये आदद है, संख्या है, लेकिन आगे तो देखिए, आगे देखेंगे चावल है, आगे देखेंगे चावल है। चावल किस हिसाब से लिया जाता है? तौल करके लिया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? ये सिफत मिक़दारी हो जाएगा, न कि सिफत आददी होगा। आदत में गिनती होती है, आप कह सकते हैं यहाँ भी गिनती है, लेकिन क्या गिनती करके नहीं लेते हैं। अब समझिए कि 1 लीटर दूध है ना, चलो 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी तो 5 है ना, यहाँ पर भी 5 है, 5 लीटर कहा गया है। तो अब 5 लीटर जो कहा गया है, तो क्या 5 यहाँ संख्या है, आदद है? जैसे ही आप 5 देखेंगे, फट से आप जो लगा देंगे टिक, अरे ये तो सिफत आददी है, क्योंकि गिनती समझ में आ रही है, गिनती है, संख्या है। नहीं मेरे दोस्तों, याद रखना कि मैंने दूसरी चीज़ बताई कि ये बताइए कि 5 क्या है? 5 लीटर दूध है। क्या है? दूध है। तो क्या दूध को एक एक करके गिनती करके लेते हैं? नहीं। क्या करके लेते हैं? दूध को नाप करके लेते हैं, लीटर से नापते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ये सिफत मिक़दारी हो जाएगा, वज़न से लिया जाता है ना, नाप कर या तौल कर जो चीज़ें दी जाती है या ली जाती हैं, उसे ही सिफत मिक़दारी कहा जाता है। मेरे ख़्याल से कि आप इसको सिफत इस्म ज़ात और इसमें सिफत और सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी और सिफत मिक़दारी को समझ गए होंगे। इसमें सिफत की 4 किस्में हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने अभी बताया है ना। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, इसमें से ये सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेगा, ये बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएगा इसमें, है ना। इसलिए इस चीज़ को सही से समझिएगा, ठीक है ना। इसको दोबारा देख लेंगे, इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तब दूसरी चीज़ बताता हूँ।